Hello everyone. In the last video, we started a topic Leibniz monadology, and we discussed that the monadology is one of the Leibniz best known work of his later philosophy, and it is a short text which present a metaphysics of simple substance or monad in some 90 paragraphs. And we started from a phrase monad is simple substance, and the best way to understand a monad to realize that your own mind or soul is one. So basically there is a hierarchy of monad like unconscious, subconscious, conscious, self conscious, super conscious. तो ये हायरकी मैंने आपको बताई थी. And we also discussed that monads are eternal and windowless, and they are differed in quality, and that's why we discuss the theory of identity of indiscernible, यानी वो एक जैसे नहीं हैं, वो अपने आप में यूनिक हैं, और उनके वो जो यूनिक हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनल प्रिंसिपल ऑफ चेंज, क्योंकि वो आंतरिक रूप से बदलते हैं, जिसके अंदर हमने दो पार्ट पढ़े थे, परसेप्शन एंड एपिटिशन. The both were very important. And then uh, we started two main principle, that is the principle of sufficient reason and the principle of contradiction. तो आज हम यहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं. जितना मैंने पढ़ा दिया वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं. सो फर्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन. अब ये क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन इज सिंपली दैट नथिंग इज विदाउट अ रीजन. कुछ भी बिना कारण के नहीं है, और देयर इज नो इफेक्ट विदाउट अ कॉज. सो एक इफेक्ट एंड कॉज थियोरी होती है कि जो भी इफेक्ट है, जो भी कार्य है, उसका कोई ना कोई कारण होता है. In the principle of nature and grace, Leibniz suggests that the claim that nothing takes place without a sufficient reason means that nothing happens in such a way that it is impossible for someone with enough information to give a reason why it is so and not otherwise. क्योंकि बिना कारण के कोई किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता. सो इन द मोनेडोलॉजी, however, Leibniz frankly admits that most of the time these reasons cannot be known to us. दिक्कत थोड़ा सा यहाँ पर है, क्योंकि सी द फर्स्ट premises is that nothing can be without a reason or sufficient reason. कोई भी इफेक्ट बिना कारण के नहीं होता. एंड द सेकेंड पॉइंट, कभी कभी वो कारण हम नहीं जान सकते बिकॉज ऑफ लिमिटेड इंटेलिजेंस, लिमिटेड सेंस कैपेसिटी, है ना. बट उसका कारण हम नहीं भी जान पा रहे हैं, तब भी उसका कोई ना कोई रीज़न है. सेकेंड इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. According to the principle of contradiction, a proposition must be either true or false. एक जो proposition है वो या तो सत्य होगी या असत्य. If two propositions are contrary to each other, then one of the proposition must be true and other must be false. Principle of contradiction states simply that a proposition cannot be true and false at the same time, that therefore A is A and cannot be not A, or we can say अगर हम लॉजिक में देखें तो negation A. सो हम एक टाइम पे एक ही चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, A और negation A, है ना. क्योंकि अगर हमने दोनों को किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रडिक्शन. अगर मैं बोलूँ आई एम 6 फुट टॉल एंड आई एम नॉट 6 फुट टॉल, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है. या तो आप
सिक्स फुट टॉल होंगे या तो आप सिक्स फुट टॉल नहीं होंगे। अ, अब क्योंकि हमने दो प्रिंसिपल पढ़े, हम यहाँ से बात करेंगे टू काइंड्स ऑफ ट्रुथ। सो फर्स्ट इज ट्रुथ ऑफ रीजन एंड सेकंड इज ट्रुथ ऑफ फैक्ट। अब इनमें क्या अंतर है? ट्रुथ ऑफ रीजन आर ए प्रायरी, while truth of fact are a posteriori. Now, what is the difference between a priori and a posteriori? A given proposition is knowable a priori if it can be known independent of any experience. यानी a priori propositions आपके अनुभव पे, आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड नहीं करती, other than the experience of learning the language in which proposition is expressed. Whereas the proposition that is knowable a posteriori is known on the basis of experience. जबकि जो a posteriori propositions होती हैं उन्हें हम experience के थ्रू जान सकते हैं, experience के थ्रू express कर सकते हैं. For example, the proposition that all bachelors are unmarried is a priori. ज़रूरी नहीं ये एक्सपीरियंस किया हो या ना किया हो, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सपीरियंस. एंड द प्रपोजिशन दैट इट इज़ रेनिंग आउटसाइड नाउ इज़ अ पोस्टराई, क्योंकि जब तक इसे देखेंगे नहीं, परसीव नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, आप इसे ट्रू या फॉल्स नहीं डिक्लेयर कर सकते. सो द ट्रुथ ऑफ रीज़न आर ए प्रायरी. इनको प्रूफ करने की, एक्सपीरियंस के बेस पे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ट्रुथ ऑफ फैक्ट ये एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं. सो अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ, सो ट्रुथ ऑफ रीज़न आर नेसेसरी एंड परमानेंट ट्रुथ, क्योंकि वो हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड नहीं है. Truth of fact are contingent, empirical truth. Both kind of truth must have a sufficient reason. Truth of reason have their sufficient, truth of reason have their sufficient reason in being opposed to the contradictoriness and logical inconsistency of proposition which they deny. Truth of fact have their sufficient reason in being more perfect than proposition which deny them. So इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जो इम्पिरिकल ट्रुथ हैं वो ट्रुथ ऑफ फैक्ट हैं, और जो नेसेसरी एंड परमानेंट ट्रुथ हैं which cannot be changed on the basis of experience, that is truth of reason. Now, God as a supreme monarch. जैसे कि मैंने हायरार्की बताई थी आपको, उसमें से जो सबसे सुप्रीम मोनार्ड है दैट इज गॉड. Leibniz also claimed, however, that the ultimate reason of all things must be found in a necessary and universal substance, which is God. वो कहते हैं कि एक नेसेसरी और यूनिवर्सल सब्सटेंस है जो क्या है? गॉड. A primary substance is not material because matter is indefinitely divisible. क्यों एक मैटर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैटर हमेशा पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, होता जाता है. Every monad is produced from a primary unity which is God according to Leibniz. The existence of a necessary substance cannot be denied without causing some form of self-contradiction. Thus, God existence is logically necessary, क्योंकि God के existence को कोई भी contradict नहीं कर सकता. God is absolutely real, infinite and perfect. All person and all reality comes from God. सब कुछ God से ही आ रहा है, वो अपने आप में परफेक्ट है.
So God alone is the ultimate unity or original simple substance of which all created monads are the product. सारे मोनाड उसी का प्रोडक्ट हैं, उसी से बने हुए हैं. गॉड इज सुप्रीम. नेक्स्ट इज एक्टिविटी एंड पैसिविटी. Leibniz explained that the perfection of a monad is revealed by its activity. The imperfection of the monad is revealed by its pessimist, यानी सक्रियता, वो कितना सक्रिय है, एंड निष्क्रियता, इनसे पता चलता है, ये सॉरी मात्रा नहीं लगेगी, निष्क्रियता, इनसे पता चलता है कि एक मोनाड परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है. A monad is perfect insofar as it is active and is imperfect insofar as it is passive or not active. Action and reaction are reciprocal relations between monad and are constantly change. ये जो एक्टिविटी और पैसिविटी है, ये मोनाड में चलती रहती है. ये एक प्रोसेस की तरह एक रिलेशन है और उसलिए उसमें कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है. द एक्शन और रिएक्शन ऑफ सम मोनाड आर अ सफिशिएंट रीजन फॉर द रिएक्शन ऑफ अदर मोनाड. मान लीजिए किसी मोनाड में एक्शन या रिएक्शन हो रहे हैं, उनका जो इफेक्ट है वो दूसरे मोनाड में भी पड़ सकता है. So all of the action and the reaction of monad are governed by the principle of pre-established harmony. क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि मोनाड में एक्सटर्नल कॉज से कुछ भी नहीं होता, वो विंडोलेस है, उसमें कुछ भी अंदर उसको इंटरनली कोई भी चीज़ इफेक्ट नहीं कर सकती. सो अगर वो उसमें एक्शन रिएक्शन हो भी रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्री एस्टैब्लिश हार्मनी, जो पहले से ही बनी हुई है, एंड विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय गॉड. और वो हार्मनी किसने बनाई है? वो गॉड ने बनाई है. प्री एस्टैब्लिश हार्मनी गॉड ने बनाई है. सो आप देखिए कि मोनाड में जो भी सक्रियता या निष्क्रियता है वो कहीं ना कहीं एक रूल के थ्रू चल रही है. वो प्री एस्टैब्लिश हार्मनी है और वो किसने बनाई? गॉड. क्योंकि गॉड क्या है? सुप्रीम मोनाड है. तो उसके ऊपर कोई भी नहीं है, वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है. एंड ऑल्सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट Leibniz argue that insofar as the rational soul can know eternal truth, and the spiritual world is a moral word which can guide the natural world, so goodness of God ensure that there is harmony between spiritual world and natural world, so, and establish harmony between moral laws and natural laws. So a perfect harmony of moral and natural law is found in the word which Leibniz calls city of God. वो कहते हैं ये भगवान का शहर है जहाँ पे नेचुरल और स्पिरिचुअल इन दो दुनियाओं के बीच एक संतुलन बना रहता है, क्योंकि वो संतुलन ईश्वर ने बनाया है. जैसे हम कहते हैं ना कि आप देखो कि ये जो भौतिक दुनिया है ना, ये चल रही है. ये कैसे चल रही है? हर चीज़ अपने टाइम पे हो रही है. सूरज निकलता है, ढल जाता है, मौसम बदलते रहते हैं. कैसे? ये एक पूर्व सामंजस्यता है, प्री एस्टैब्लिश हार्मनी. और अगर लाइबनीज के शब्दों में कहें तो ये किसने बनाई? ये ईश्वर ने बनाई है. नाउ प्री एस्टैब्लिश हार्मनी. देयर इज एन इनविजिबल इंटरेक्शन बिटवीन मोनाड्स which according to Leibniz is due to the pre-established harmony, and this interaction is only an appearance. क्योंकि ये हमको ऐसा लग रहा है कि ये सब हो रहा है, बट रियलिटी ये है कि ईश्वर ने हर एक चीज़ को
बनाया हुआ है और इस तरह से बनाया हुआ है कि उसमें बार बार इंटरफ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. मोनाड हैव नो ट्रू कॉजल रिलेशन विथ अदर मोनाड्स. हमें ऐसा लगता है कि एक मोनाड दूसरे मोनाड को प्रभावित कर रहा है. सूरज निकलता है तो फूल खिलते हैं, या सूरजमुखी उसकी तरफ मुड़ता है तो सूरज और सूरजमुखी का एक कहीं ना कहीं कनेक्शन, ऐसा हमें लगता है. बट all are perfectly synchronized with each other by God in a pre-established harmony. लेकिन हर एक चीज़ एक दूसरे से अगर संबंधित है और जुड़ी हुई है, उनके बीच एक सिंक्रोनाइजेशन है, तो वो इसलिए क्योंकि गॉड ने उन्हें बनाया ही ऐसा है. When a change occurs within a single monad, every other monad in the universe spontaneously reflect this change in as much as God, in a single creative act at the beginning of time, synchronize the universe by establish once and for all a harmony between all monad. God has programmed them into us from a beginning. भगवान ने शुरू से ही दुनिया को और सारे मोनाड को ऐसे बनाया है कि वो एक दूसरे से मिलकर चलते रहते हैं, और हमें लगता है कि एक मोनाड दूसरे मोनाड को प्रभावित कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है. फॉर द एग्जाम्पल ऑर्केस्ट्रा, हम दो एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक ऑर्केस्ट्रा का और एक क्लॉक का. So imagine a whole orchestra in which each individual musician is locked in a separate room. ये समझ लीजिए कि ऑर्केस्ट्रा का हर एक मेंबर, जो भी म्यूजिशियन है, वो एक अलग अलग रूम में बंद है. दे हैव बिफोर देम द सेम स्कोर एंड सिमिलरली calibrated metronomes. Each musician play his or her part without interacting with the other musician. हर म्यूजिशियन अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है, एंड कलेक्टिवली दे प्रोड्यूस द टोटलिटी ऑफ सिम्फनी. और उन सब से मिलकर पूरा संगीत बन रहा है. भले ही वो एक दूसरे के साथ नहीं है, ना वो देख रहे हैं, ना उनका कोई इंटरेक्शन है, वो अलग अलग कमरे में बंद है, लेकिन जब संगीत निकलता है तो ऐसा लगता है कि वो एक साथ वो धुन बजा रहे हैं. तो इसी तरीके से मोनाड भी विंडोलेस है. एक मोनाड दूसरे मोनाड के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन जब वो अपना अपना काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कलेक्टिव वे में एक साथ हैं और वो एक दूसरे से इंटरेक्शन में हैं. Leibniz also used the example of two clocks synchronized so that they move their hand in unison even though there is no causal interaction between them. ऐसा नहीं है. अब जैसे घड़ियां हैं, देखो जो घड़ी साज होता है, जो वॉच मेकर होता है, वो उसको एक बार बना देता है. फिर ऐसा नहीं है कि वो उसे हाथ से घुमाता रहे कि अब 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा. नहीं, वो इतनी सिंक्रोनाइज होती है कि आप वॉच की शॉप में जाओ और हर वॉच अपने टाइम पे चल रही होती है, चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो, किसी भी आकार की हो, क्योंकि उससे वॉच मेकर ने उसको वैसे ही बनाया है. इसी तरह ये दुनिया और जो मोनाड है, हर एक जो सिंपल सब्सटेंस मोनाड है, उससे बनी ये दुनिया क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही सिंक्रोनाइज्ड है. ये हमें अपीयरेंस इसलिए कि हमें लगता है कि वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है. नेक्स्ट इज लिविंग मिरर ऑफ द यूनिवर्स. It is impossible for a monad to have a physical influence on the inner nature of another. जैसा कि मैंने कहा कि एक मोनाड दूसरे मोनाड को इफेक्ट नहीं कर सकता. The relation between various monad is that they express all the other, and Leibniz term as being living mirror of the universe. फर्क सिर्फ इतना है कि एक मोनाड दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? लिविंग मिरर ऑफ द यूनिवर्स. जैसे कि आप सपोज अपने आप को मिरर में देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके मिरर की इमेज और आपकी एक दूसरे को इफेक्ट कर रही है, बट वो क्या है? एक रिफ्लेक्शन है. इसी तरीके एक मोनाड दूसरे मोनाड को रिफ्लेक्ट करता है और हमें लगता है कि उनमें कुछ रिलेशन है. There are many perspectives of the universe as each monad has its own point of view of the universe. This gives rise to a large variety while they are still being order. क्योंकि हर एक मोनाड का अपना एक पर्सपेक्टिव है और हमें लगता है कि यहाँ तो बहुत वैरायटी है, और लेकिन ऐसा वैरायटी के बाद भी वो एक ऑर्डर में सिंक्रोनाइज्ड
हैं. God in regulating the whole had regard to each part, especially each monad. So the nature of monads is representative and nothing can limit it from representing the universe. कोई भी उसे नहीं रोक सकता. Then the principle of the best about God. Leibniz argued that God is supremely perfect. One of the most basic principles of his system is that God always act for the best. Always act for the best. And therefore, God has chosen the best possible plan for the universe. God's plan for the universe necessarily produce the greatest amount of happiness and goodness because it reflects God's absolute perfection. कि गॉड ने एक ऐसी दुनिया बनाई है जो बेस्ट है, वहाँ पे ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस और गुडनेस, सुख और जो अच्छाई है, शुभ है, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में है क्योंकि गॉड ही अपने आप में परफेक्ट है. बट यहाँ पे एक पॉइंट रेज होता है, वो क्या? बट लाइबनीज आर्ग्यूमेंट में बी डिस्प्यूटेड बाय अपोजिंग आर्ग्यूमेंट. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? That the best of all possible world may not necessarily contain both good and evil, happiness and unhappiness. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम तो इस वर्ड में evil भी देखते हैं, unhappiness, pain, suffering सब कुछ है. तो आप कैसे कह सकते हो कि भगवान ने तो बिल्कुल परफेक्ट दुनिया बनाई है? It follows also that monads derive their perfection from the influence of God, but that their imperfection come from their own nature. अब देखिए इसका आंसर ये है, अगर ये प्रॉब्लम है तो आंसर ये है कि भगवान ने तो मोनाड को परफेक्ट ही बनाया है, वो उसके ही इन्फ्लुएंस से बने हुए हैं. लेकिन अगर कोई इम्परफेक्शन है तो वो मोनाड के अपने इंटरनल नेचर की वजह से, विच इज़ इनकेपेबल ऑफ बीइंग विदाउट लिमिट. For it is in this that they differ from God. An instance of this original imperfection of monad may be seen in the natural inertia of bodies. तो अब देखिए, जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान ने ह्यूमन बीइंग को तो सबको एक जैसा बनाया है, लेकिन हम कहते हैं ना साधारण भाषा में कि भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करता. आपके अपने कर्म आपको अच्छा या बुरा फल देते हैं. क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको बना दिया, उसके बाद आपको कर्म करने की स्वतंत्रता, बुद्धिमत्ता वो ईश्वर ने दी है. ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उन गुणों का यूज़ करते हैं, उसके अनुसार अच्छा और बुरा फल पाते हैं. गॉड क्रिएटेड बेस्ट वर्ड. उसके लिए एक आर्ग्यूमेंट दिया है. कैसे? God is morally perfect, all-knowing and all-powerful being. A morally perfect, all-knowing and all-powerful being always chooses the best of all possible alternatives. क्योंकि जिसमें ये गुण है, परफेक्ट है, ऑल नोइंग है, ऑल पावरफुल है, वो हमेशा बेस्ट ही चूज करेगा. God choose to create this world, so therefore this is the best of all possible words. ये आर्ग्यूमेंट था, ये प्रूफ करने के लिए कि गॉड क्रिएटेड बेस्ट वर्ड. नाउ व्हाई इज देयर ईविल? क्योंकि अभी मैंने कहा कि ईविल है, इस वर्ड में ईविल है. सो व्हाई इज देयर ईविल इन द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ड? छोटा सा एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा, लेकिन हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं. लाइबनीज एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ ईविल इन हिज theodicy, a term that means a justification of the way of God. According to Leibniz, there are three categories of evil: metaphysical evil, physical evil and moral evil. So, अब ये क्या है? Metaphysical evil is a mere imperfection. Since evil is a privation or the negative quality of lacking perfection. वो कहते हैं कि मेटाफिजिकल ईविल क्या है?
कि एक मेयर इम्परफेक्शन है, जो परफेक्शन की कमी को हम कह सकते हैं वो मेटाफिजिकल ईवल है। इट कैन नॉट बी सेड दैट ईवल इज पॉजिटिव रियलिटी गॉड क्रिएटेड। हम ये कभी नहीं कह सकते कि ईवल एक ऐसी क्वालिटी है जो गॉड ने क्रिएट की है। नहीं, गॉड तो परफेक्ट है, बट परफेक्टनेस में अगर कहीं इम्परफेक्शन है तो वो मेटाफिजिकल ईवल है। Leibniz handled the problem of physical evil with an a priori argument. क्या argument दिया है उन्होंने? Since he has argued this must be the best word, then even suffering of its creatures must somehow contributed to the overall good of the total system. वो कहते हैं कि अगर हम फिजिकल ईवल की बात करें तो क्या है कि ईवल भी अपने आप में अच्छी है, क्योंकि वो ईश्वर ने अगर वो हम सब जानते हैं कि जैसे सफरिंग हो गया, ठीक है, या स्ट्रगल हो गया। सो फॉर एग्जांपल सफरिंग कैन बिल्ड कैरेक्टर एंड ड्रॉ आउट द बेस्ट इन अस, कि हम स्ट्रगल में निखर के आते हैं। कहते हैं ना कि एक हीरा, हीरे को जब शेप देते हैं, उसको ठोक ठोक के बनाते हैं तो वो किसी अंगूठी या नग में बदलता है ना। उसी तरह से कोयला पक पक के बहुत महंगा हो जाता है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे पत्थर को चोट मार मार के वो मूर्ति बनती है। तो कहते हैं कि जो फिजिकल ईवल है वो मतलब अच्छी ही है, क्योंकि वो हमें निखार रही है। एंड moral evil is caused by free choice of people who lack a rightly ordered will. Thus God cannot be blamed for existence of moral God. कि लोग जो अपने मन से जो फ्री विल के अकॉर्डिंग जो करते हैं, मतलब वो जो सही काम नहीं करते हैं, वहाँ से मॉरल ईविल निकल कर आती है। सो किसी भी ईविल के लिए गॉड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देन लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। Leibniz argued that nature is not discreted, वो कहीं ब्रेक नहीं होता, वो कॉन्टिन्यूस है। दिस आइडिया इज नोन एज द लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। दैट्स वाई देयर इज अ phrase there are no leap or grasp in nature। ऐसा नहीं है कि कहीं रुक के हम उसे बदलेंगे या उसके चेंज को रोक देंगे, नहीं। जो कॉन्टिन्यूटी है वो लगातार, जैसे रिवर का पानी, ओशन का पानी बहता रहता है, उनमें कॉन्टिन्यूटी होती है। हमें लगता है ठहराव है, लेकिन वो बहता रहता है। देन माइंड बॉडी रिलेशन। Leibniz think his metaphysical system solved the problem of how our mind relate to our body. He has argued that what we call physical bodies are actually collection of infinitely small monad। वो कहते हैं कि है क्या वैसे बॉडी, अगर हम समझे कि फिजिकल बॉडी, आप ह्यूमन बॉडी से इसको समझ सकते हैं, तो वो है क्या, वो बहुत सारे मोनाड्स का कलेक्शन है। अब ऑर्गेनिक बॉडीज आर communities of monad activities are harmonized with those of a dominant monad, which is the mind or soul। तो ये हो गया आपका माइंड एंड बॉडी। बॉडी क्या है, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ द मोनाड, कलेक्शन ऑफ द मोनाड, ठीक है। और ये जो माइंड है दैट इज सुपीरियर मोनाड कह सकते हैं, और द डोमिनेंट मोनाड। अब इन दोनों के बीच इंटरेक्शन कैसे होता है? सो यू एक्सपीरियंस, आप इसको मैं ऐसे ही समझाऊंगी जैसे आप समझो कि ह्यूमन बॉडी को ही इमेजिन करो। So you experience all the monad in the universe to various degree, but monad in your body are the one you experience the most clearly and directly. Of course, there cannot be any direct interaction between mind and body. कोई direct interaction तो नहीं है माइंड और बॉडी के बीच। फॉर ऑल मोनाड्स आर विंडोलेस, क्योंकि मोनाड्स तो विंडोलेस है, वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर सकते। Instead, God has correlated the change in your mind
and body to work in perfect harmony. Again, माइंड और बॉडी के बीच एक प्री स्टैब्लिश हारमोनी है जो गॉड ने बनाई है. When the monad in your stomach are experiencing discomfort, a corresponding feeling occur in your mind. Similarly, when you want to pick up pencil or pen or anything else, the monad compromising your hand or respond appropriately. Leibniz state soul act according to the law of final cause by appetition, ends and means bodies act in accordance with the law of efficient causes. And the two realm that of efficient cause and final cause are in harmony with each other. So the difference between these two realms in difference between looking at the event from outside and inside. एक्चुअल में कोई डिफरेंस है नहीं उन्हें. ऐसा बॉडी और माइंड वो अलग अलग ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं. वो सिर्फ क्या है कि एक वो प्री एस्टैब्लिश हारमोनी है जिसके अकॉर्डिंग वो एक दूसरे को ऐसा लगता है कि प्रभावित कर रहे हैं. इज एवरीथिंग वॉज, अब वो कहते हैं कि देखो हर चीज ईश्वर कर रहा है. इज एवरीथिंग वॉज डिसाइडेड बाय गॉड, कैन वी से वी आर फ्री. अगर सब कुछ गॉड ही डिसाइड कर रहा है तो क्या हम कह सकते हैं कि हम फ्री हैं. ये तो ऐसा हो गया कि जैसे हम कठपुतली हैं, गॉड हमें जैसे नचा रहा है हम वैसे नाच रहे हैं. लाइबनीज डज नॉट बिलीव गॉड इज अ पपेट मास्टर. ऐसा नहीं है. Who is pulling your string and making you act in ways you don't choose or you don't control. Given who you are, your actions are the result of your value and your character. वो कहते हैं कि ईश्वर ने आपको बना दिया. अब आप किस तरह के कर्म करते हैं, क्या आपके एक्शन है, उस पर आपका कैरेक्टर और आपकी लाइफ डिपेंड करती है. दे फ्लो फ्रॉम योर इनर एसेंस. Whether you decide to play some rock music or a classical one at any given time is your free decision. आप क्या करना चाहते हैं. Everything a person does that is not the result of external coercion is determined by his or her own internal character. कुछ भी externally decide नहीं होता. सब कुछ आपकी inner will से होता है. If our choices are determined by own character, this is all that could be reasonably meant by human freedom. यही तो हमारी freedom है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं. When God chose to create this world, He chose to create you, but who you are is your personality. उसने तो आपको बना दिया, लेकिन आप कौन हैं, आपकी personality ये आपकी desires और आपके action पर depend करता है. So, your desire, your every event that will occur within your experience. Thus, we can say we are both determined and free. Determined इस सेंस में कि हमें गॉड ने बनाया, और फ्री इस सेंस में कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं. So this is all about Leibniz monadology. वैसे डिटेल तो बहुत है, बट मैंने इसको ऐसे समराइज़ करने की कोशिश की है कि आपको सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आ जाएं. थैंक यू सो मच.